चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कल वाले टॉपिक में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए। लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये सब पे बात हो रही थी। उसमें से कुछ पूछना हो लैंग्वेज में, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? क्लियर है पॉइंट्स? आगे का टॉपिक जो है दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 8। अब पहला जो पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू CSR और डायरेक्टर्स का वहाँ पे क्या रोल है उसको लेके बात हो रही है। ठीक है, अब लैंग्वेज में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है मैं उतनी ही रीड करवाता हूँ, बिकॉज CSR के बारे में बेसिक्स आप जानते हो, तो उतना डेप्थ में अभी डिस्कशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। थियरी उस हिसाब से रखिए कि आपको एग्जाम में कुछ पॉइंट्स चाहिए तो आप उसमें से ले सकते हो। स्टार्टिंग में जो पहला पार्ट है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रोल है CSR को लेके, उसके ऊपर बात हो रही है, एंड देन हम CSR पे आएंगे। तो एटलीस्ट डायरेक्टर्स का रोल समझ लेते हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि मैनेजमेंट के हेड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो CSR की पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, वो सब उन्हीं को करना है, तो वो इम्प्लाइड सी बात है। तो उनका ही रोल यहाँ पे रहने वाला है। अब वो कोई CSR कमेटी बना दें, उसमें से कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दे, वो सब चीज़ें हो सकती है, बट मोर और लेस जो बर्डन होगा सारा मैनेजमेंट करने का वो उनके ऊपर ही रहने वाला है, और उसी चीज़ को यहाँ पे रिलेट कराया। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लेज अ पाइवोटल रोल इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस. Contribution of directors on the board is critical. A board's responsibilities derive from law, custom, tradition, prevailing practices. In the present times, transparency, disclosure, accountability, issues of sustainability, corporate citizenship, globalization are some of the concerns that the board have to deal. ये सब जनरल चल रहा है अभी. In addition, the boards have to respond to the explosive demands of the marketplace. This two-dimensional role of the board of directors is a cornerstone in evolving a sound, efficient, vibrant, dynamic corporate sector for attaining high standards in integrity, transparency, conduct, accountability, as well as social responsibilities. The professional like CS are best fit to advise the board of directors to play their role efficiently. और ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। अब आगे बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में क्या रोल रहेगा। तो इम्प्लाइड सी बात है कि जो भी टाइप के डिसीजंस लेने होंगे वो सारा रोल जो है वो इन्हीं के ऊपर आने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे रहने वाली। अब वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, बिजनेस डिसीजंस हो, कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, सारे पॉइंट्स आने वाले। तो इन जनरल लैंग्वेज है, एक बार फिर भी रिलेट करते जाते हैं। राशि एक बार रीड करना स्टार्ट करो। हाँ, रोल ऑफ बोर्ड्स। The institution of board of directors was based on the premise that a group of trustworthy and respectable people should look after the interest of the large number of shareholders who are not directly involved in the management of the company. The position of the board of directors is that of trust, as the board is entrusted with the responsibility to act in the best interest of the company. The contribution of board of directors of companies is critical for ensuring appropriate directions with regard to leadership, vision, strategy, policies, monitoring, supervision, accountability to shareholders and other stakeholders, and to achieving greater levels of performance on a sustained basis, as well as adherence to the best practices of corporate governance. An effective board defines the company's purpose and then sets a strategy to deliver it, shapes its culture and the way it conducts the business. It sets the main trend and factors affecting the long-term success and future viability of the company, for example, technological change or environmental impacts, and how these and the company's principal risk and uncertainties have been addressed. देखो वही चल रहा है कि भाई बोर्ड का रोल जो है वो बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट में रहने ही वाला है, तो इसमें बिल्कुल भी ये टेक्निकल आंसर नहीं है। ये आपको इनमें से कोई पॉइंट अगर यूज़ करना पड़े तो आप किसी आंसर में कर सकते हो, एज इट इज़ कहीं पे ये शायद ही पूछेंगे, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो। आगे भी वही बोल रहे हैं, द बोर्ड शुड हैव साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वैल्यू इज़ क्रिएटेड ओवर टाइम, की स्ट्रैटेजी। तो ये सब वो ज्ञान देने वाली बात होगी, ऑब्वियसली बोर्ड को ये सब पता होता है, तो इसमें ऐसा कुछ इतना भी रेलिवेंट नहीं है। आगे भी देखते हैं, अगर कुछ पॉइंट्स रीड करने जैसे लगे तो ये पढ़ते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। लास्ट में इसको वो टिक मार्क वाले पॉइंट्स में समराइज़ कर दिया है। तो इन शॉर्ट ये थियरी है, आप रीड ओनली मार्क कर लो, उसको चलेगा। एग्ज़ाम के दिन पे इस पर टाइम मत वेस्ट करना। चलो देखते हैं। तो इसके बाद अब जो टॉपिक है दैट इज़ CSR में भी सेम पेज 9 और 10 पे आपको जितनी थियरी दे रखी है ना, उसमें वो रीड ओनली वाला पार्ट है, वो सिर्फ CSR क्या होता है वो समझाया। तो ऑलरेडी आप ये सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हो। पेज 11 पे आ जाओ, वहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ CSR। ये भी वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रखी हुई है कि चलो टेक्निकली कुछ आपको रिलेट करना है तो कर सकते हो। अब इसका रेफरेंस ले लेते हैं, CSR की डेफिनेशन में उन्होंने कैसे उसको एक्सप्लेन किया, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ, रीड करना स्टार्ट करो ना डेफिनेशन। As per rule
2D of the company's Corporate Social Responsibility Policy Rules 2014, corporate social responsibility means the activities undertaken by a company in pursuance of its statutory obligation laid down in Section 135 of the Act in accordance with the provisions contained in these rules, but shall not include the following: namely, activities undertaken in the pursuance of normal course of business of the company. ये एक्सक्लूजन्स हो गए, ये सब चीज़ें CSR नहीं है। ऑब्वियसली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जो एक्टिविटी करोगे वो CSR एक्टिविटी में काउंट नहीं हो सकती। फिर हावेवर करके प्रोविज़ो आ गया, पढ़ो। However, any company engaged in research and development activity of new vaccines, drugs, and medical devices in their normal course of businesses may undertake research and development activity of new vaccine, drugs, and medical services related to COVID-19 for financial years 2020-21, 2021-22, 2022-23, subject to the conditions that such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organizations mentioned in item 9 of schedule 7 to the act. Details of such activities shall be disclosed separately in the annual report on CSR included in the board's report. ठीक है, तो हावेवर में उन्होंने एक्सेप्शन में बोल दिया कि नॉर्मली जो कंपनीज वैक्सीन का डेवलपमेंट और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में काम करती हैं, अगर उनको कोविड वाले मैटर को लेके कुछ रिसर्च डेवलपमेंट करना हो तो वो CSR एक्टिविटी में काउंट हो सकता है। बट उसकी एक टाइम फ्रेम थी FY 2021 से लेके 23 तक, जो टाइम जा चुका है। तो ये 3 साल के लिए इनको अलाउ किया था कि कोविड वाला सारा रिसर्च का खर्चा आप CSR में क्लेम कर लो, बट वो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में आपको करना पड़ेगा, तो ही वो वैलिड माना जाएगा। तो ऑब्वियसली उन कंपनीज़ ने इनका बेनिफिट लिया ही होगा डेफिनेटली। फिर इसके बाद any activity undertaken by the company outside India except for training of Indian sports personnel representing any state or union territory at national level और इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। अब ये एक्सक्लूजन की लिस्ट चल रही, ध्यान रखना। तो कोई भी काम अगर आपने इंडिया के बाहर जाके किया है तो CSR एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ गया। इसका मतलब कि ये CSR एक्टिविटी है। जो आप जो ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को परफॉर्मेंस के लिए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, वो ट्रेनिंग एक्टिविटी उनको भले इंडिया के बाहर मिल रही है, लेकिन वो CSR एक्टिविटी है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो हमारे इंडिया के हैं, वैसा है। बट अदरवाइज आप कोई स्पेंडिंग इंडिया के बाहर करते हो तो वो CSR में काउंट नहीं होती। तीसरा पॉइंट, contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the act. ये अपन ने कंपनी लॉ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही पॉइंट है। फिर नेक्स्ट, activities benefiting employees of the company as defined in clause K of section 2 of the code on wages 2019. ये भी ना कोड ऑन वेजेस और ये सब अभी रिसेंट आया। आपने जो लेबर लॉ नहीं पढ़ रहे थे SBEC में, अपन ने इंडस्ट्रियल लेबर लॉज पढ़े, तो उसके अंदर अलग अलग एक्ट है, जैसे बोनस एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और ये सारी चीज़ें। तो उसको ना अब वो सारे लेबर लॉज को इन्होंने 4 कोड्स में क्लासीफाई कर दिया। तो ये कोड ऑफ वेजेस 2019 एक जनरल कोड है जिसके अंदर वो सारे एक्ट्स को इन्होंने एनलिस्ट कर दिया। तो आपको एग्जांपल ध्यान रखना है तो आप बोनस एक्ट का रख सकते हो कि भाई वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसके लिए अगर कुछ भी कंपनी काम करती है, वो CSR थोड़ी ना है, वो तो बिजनेस है भाई, वो तो लॉ है जो फॉलो करना है, उसमें CSR वाली कोई बात नहीं है। हम आउटसाइडर्स की हेल्प करें तो वो CSR होता है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो उस बेस पे बात चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, activities supported by the companies on sponsorship basis for deriving marketing benefits for its products or services. सिंपली हो गया कि आप अगर स्पॉन्सरशिप दे रहे हो किसी चीज़ की तो आप अपना ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो। आप ब्रांड स्पॉन्सर हो तो हर बार आपका नाम लिया जाएगा, तो उसमें आपने CSR क्या किया, वो आप सामने वाले की हेल्प नहीं कर रहे, खुद की ब्रांडिंग कर रहे, ये वैसा हो गया वो चीज़ है। और लास्ट पॉइंट में, Activities carried out for fulfillment of any other statutory obligation under any law in force in India. ये जनरल पॉइंट हो गया कि और भी कोई लीगल कंप्लायंस की वजह से आप कुछ खर्चा कर रहे हो तो वो CSR एक्टिविटी में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है। अब फिर है ना, इसके बेनिफिट्स की बात हो रही है कि CSR के बेनिफिट्स क्या है। अभी शॉर्ट नोट हो सकती है, नो डाउट कंपनी लॉ का टॉपिक है, बट इंस्टीट्यूट बुक में दिया है तो पूछ ही सकता है, तो एक आंसर बन सकता है। अब ऐसे आंसर में आपको मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रखना है, पूरा आंसर लैंग्वेज वाइज लास्ट डे पे नहीं पढ़ना है, ये वैसा आंसर है। तो अपने भी मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करते जाते हैं क्या हो रहा है। जो पहला उन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया है, मैं रीड नहीं करा रहा हूँ, मेन वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ना पब्लिक इमेज की बात हो रही है, आपको मेन वर्ड्स अपने आप दिख जाएंगे। ब्रांड बिल्डिंग, पब्लिक इमेज, रेप्यूटेशन, उसकी बात हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, जो कंपनी CSR करती है वो अंडर ऑब्लिगेशन है कि उसको करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई ये लीगल एस्पेक्ट समझता नहीं है। जब कोई कस्टमर, जब कोई बायर या एक कॉमन पब्लिक ये देखती है कि कोई कंपनी समाज सेवा पे काम कर रही है, तो उनके माइंड में तो ये आता है कि अच्छी कंपनी है, मतलब ये लोग सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचते। अब रिलायंस में अपने देखते हैं तो भाई उनका जो CSR वाला पूरा रिलायंस फाउंडेशन है वो नीता अंबानी हैंडल कर रहे हैं। तो बहुत जगह ऐसे इवेंट्स में वो दिखते हैं, उनकी प्रेजेंस दिखती है कि वो कुछ, जैसे वो बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, या उनको IPL के टाइम पे मैच दिखाने लेके आ रहे हैं, या उनका फ्री एजुकेशन या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं।
तो हर किसी को थोड़ी पता है कि उन पे ऑब्लिगेशन इसलिए कर रहे हैं। कॉमन पब्लिक क्या सोचती है कि यार बड़े लोग हैं, इतना पैसा कमाते हैं तो समाज सेवा भी करते हैं, तो कंपनी अच्छी है, तो ये कोई इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, रेपुटेशन बिल्टअप हो जाती है, तो वो उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में वही पॉजिटिव इमेज, इससे एम्प्लॉयज़ का सोशल इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है कि यार हमारा एम्प्लॉयर अगर CSR के पीछे इतना सीरियसली एफर्ट कर रहा है, तो एक होता है ना, हर इंडिविजुअल आपका वो नेचर पे होता है, अपनी भी इच्छा होती है कि यार मौका मिलेगा तो हम भी सेवा करेंगे, पब्लिक के लिए कुछ करेंगे, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर कोई कुछ कर रहा है तो हम साथ में जुड़ जाएंगे, तो उस टाइप का एक इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है। ठीक है, इससे द थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं कंपनी सोशल इन्वॉल्वमेंट डिस्करेजेस एक्सेसिव रेगुलेशंस और इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप अगर समाज सेवा में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे हो, तो सरकार भी आपके साथ लीनियंट रहती है कि नहीं अच्छी कंपनी है, लोग इतना बड़े स्केल पे हेल्प करते हैं लोगों की, तो हम इनके साथ ना अननेसेसरीली ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, तो उल्टा अपने फेवर में जाता है कि भाई अपने को ज़्यादा कोई कुछ बोलेगा नहीं, वैसी बात है। ठीक है, इंटरनल एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन की, उसका इम्पैक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। सिस्टम में सब कुछ को रिलेटेड है ना भाई, सोसाइटी है, कंपनी है, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, तो सब आपस में कनेक्टेड है। तो अच्छा काम करोगे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो एनवायरनमेंट एक्सटर्नली भी उस पर इफेक्ट पड़ने ही वाला है। Business organization has a great deal of power and money entrusted upon it by the society. It should be accompanied by an equal amount of responsibility. ये जनरल बोल दिया कि आपको जब इतना पैसा मिला है, इतनी बड़ी कंपनी मिली है, तो एक अकाउंटेबिलिटी भी है, सोसाइटी की तरफ आपका एक रोल भी है। अब ये बेनिफिट्स की बात नहीं हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो गई। एटमॉस्फेयर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिवनेस एनकरेजेस कोऑपरेटिव एटीट्यूड। ऑब्वियसली सब मिलजुल के काम करेंगे, अच्छे काम के लिए फिर बोलते हैं सब लोग पोलाइटली काम करते हैं कि चलो हम जो भी कर रहे हैं पब्लिक की बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, कोई पर्सनल गेन की बात नहीं, तो सेवा वाली वो भावना अपने आप आ जाती है ना, वैसी बात हो गई। नेक्स्ट, कंपनीज कैन बेटर एड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द अनएम्प्लॉयड। अब ठीक है, डायरेक्टली CSR से इतना कनेक्शन नहीं है, लेकिन पॉइंट्स बना दिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्रीजिंगली इनकॉर्पोरेटिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल क्राइटेरिया। ये हो सकता है जो कंपनीज लार्ज स्केल पे CSR एक्टिविटीज़ कर रही है, इन्वेस्टर्स की नज़र में भी वो कंपनी ऊपर हो जाती है कि यार वो आजकल जो बाकी के पैरामीटर्स भी देख रहे हैं कि आप सोशल वर्क कितना कर रहे हो, तो उसमें ये चीज़ हेल्प कर सकती है। इन अ नंबर ऑफ jurisdiction गवर्नमेंट हैव एक्सपेडाइटेड अप्रूवल प्रोसेस फॉर फर्म्स दैट हैव अंडरटेकन सच एक्टिविटीज़। मतलब आपको जब अप्रूवल्स, परमिशंस, लीगल परमिशन चाहिए होती है, तो जो कंपनी CSR में ऑलरेडी आगे है उनको और क्विकली प्रोसेस करके देने की गवर्नमेंट एक इंटेंशन शो करती है। अब ये फिर क्या, वो दोनों के लिए विन विन हो गया। तो हर कंपनी सोचती है यार हम CSR में आगे रहेंगे ना, तो कल को सरकार से हमको भी फ़ायदा मिलेगा, हमारा लीगल काम जल्दी हो जाएगा, तो कंप्लायंसेस और शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये सब बेनिफिट्स में आ सकता है। नेक्स्ट एक आंसर है अगेन, क्या फैक्टर्स हैं जो CSR एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें जो पहला फैक्टर है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है ये आप जानते हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं CSR एक्टिविटीज़ पे होता है, क्योंकि आजकल एंटरप्राइजेज मल्टीनेशनल हो गई है, तो वो सब फैक्टर्स को सोच समझ के वो लोग फिर अपनी CSR एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं। नो डाउट करना तो इंडिया में ही है, लेकिन स्टिल उसका एक इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप एक बड़ा ब्रांड हो, इंटरनेशनल ब्रांड हो, उसका फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट बॉडीज़, इंटर गवर्नमेंटल एसोसिएशंस, एंटिटीज़, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ जाते हैं, उनके कुछ डिक्लेरेशंस, गाइडलाइंस भी इशू होते हैं, कुछ अग्रीमेंट्स भी आपके साथ हो जाते हैं जिस बेसिस पे आप ये काम कर सकते हो। तो नाम दे रखें, ये OECD की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो ये लोग भी बहुत बार इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस और चीज़ें इशू करते हैं कि अगर आपको CSR एक्टिविटी करनी है, आप कुछ कर रहे हो, तो हमारी गाइडलाइन से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि कौन से सेक्टर में ज़रूरत है और वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है, उस तरीके से बोला। थर्ड पॉइंट में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं, तो बोला क्योंकि इंटरनेट और ये सब चीज़ें एडवांस हो गई है, तो इन एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना बड़ा इजी हो गया है। मतलब CSR एक्टिविटी आप जब कर रहे हो, तो पैसा सच में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, उसको ट्रैक करना अब इतना ट्रबलसम नहीं। जैसे सरकार भी तो बोलती है, आपने सुना होगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र स्कीम। तो पहले क्या होता था, सरकारी स्कीम्स में जो पैसा मिलता था, लाइन में लगो, कैश लेके आओ, फिर रसीद मिलेगी, ये वो। अब उसमें घपला ये था ना कि जो मिनिस्टर लेवल पे बैठे हैं ना, वो पैसा उन्हीं के पास रह जाता था, तो एक्चुअली में जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए ना, उसके हाथ में कभी पहुंचेगा नहीं। अब सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है ये गैस सिलेंडर पे फार्मर्स को। वो आपने सुना होगा किसान योजना में कि हर महीने कुछ या क्वार्टरली 2-2 हज़ार रुपये उनको पे करती है सरकार। वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, उनका अकाउंट में पैसा चला जाएगा, इंटरमीडियरी कोई है नहीं, तो डायरेक्ट फ्रॉम द ट्रेजरी टू द बेनिफिशियरी, बीच में कोई नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट जो है वो हो गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स भी अब इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। Numerous serious and high-profile breaches of corporate ethics have contributed to elevated public mistrust of corporations and highlighted the need of improved governance, transparency and accountability.
However, being ethical and being socially responsible in making positive measurable contribution may not be same. ये तो एक जनरल पॉइंट बोल दिया कि पास्ट में इन सब चीज़ों में ब्रीचेस हो चुके हैं, उस वजह से क्या है ना, लोगों को ये समझ में आ गई कि इसमें गवर्नेंस को और ठीक करने की ज़रूरत है, इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को एनरोल करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, वैसे बोला है। ठीक है, सिटीजन्स भी अब इस चीज़ में वो करते हैं कि नहीं यार, कंपनीज़ को ये सब नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, CSR होना चाहिए। अब ये तो बोलने की बात है, सिटीजन्स के बोलने से क्या हो रहा है, एक्शन तो कंपनीज़ को लेना है, और ना ले तो फिर जो उसके सामने जो पेनल्टी लगानी है वो तो गवर्नमेंट को ही लगानी है, वो इम्प्लाइड सी बात है। तो ये तो रेगुलेटरी अथॉरिटी और कॉर्पोरेट्स के बीच की बात हो गई। देयर इज़ इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स टू इफेक्टिवली कैप्चर ऑल द इशूज़। मतलब लॉज भी अब स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, उस सेंस में बोल रहे हैं। Businesses are recognizing that adopting an effective approach to CSR can reduce risk of business disruptions. It can open up new opportunities and enhance the brand and company reputation. ये पीछे भी हमने देखा, रिपीट हो गया। Ethical person shall be attracted to join the company. हाँ, ये एक हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिन कंपनीज़ की गुडविल अच्छी हो जाए, टाटा ग्रुप है, तो सबको ऐसा है कि भाई टाटा ग्रुप मतलब वो सरकारी नौकरी की तरह देखी जाती है कि एक बार मिल गई ना तो अब टेंशन नहीं लाइफ में। ऐसा है कि भाई अच्छा एम्प्लॉयर है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, सैलरी भी मॉडरेटली अच्छी पे करते हैं, तो हर किसी को उनके साथ काम करना है। तो जब आपने सोशल लाइफ में इतना अच्छा काम किया होगा ना, तो सब लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इससे एम्प्लॉयज़ की अवेलेबिलिटी कंपनी के लिए बढ़ जाती है, ये उनका एक बिजनेस बेनिफिट हो सकता है डूइंग CSR, वो पॉइंट है। इफेक्टिव CSR विल डिपेंड ऑन द माइंडसेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, वो इम्प्लाइड है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज विद रिगार्ड टू देयर सीरियसनेस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड एटीट्यूड। तो जिस एजेंसी के थ्रू वो काम कर रहे हैं वो कितनी इसके लिए डेडिकेटेड है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इम्प्लाइड सी बात होगी। तो ये सारे जनरल फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्पेसिफिक केस स्टडीज़ है, ये मॉड्यूल की केस स्टडीज़ जो उन्होंने ऐड की। अब डेफिनेटली अपन ने लास्ट टाइम पढ़ी नहीं है कहीं पे भी, तो आपके लिए नए पॉइंट्स हैं, बट ब्रांड्स पॉपुलर है तो जल्दी रिलेट भी हो जाएगा। फर्स्ट केस में बात हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। अब इसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि रिलायंस इंडस्ट्री किस बेसिस पे काम कर रही है, वो लोग CSR को लेके कितने सीरियस है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स है, वो बताया हुआ है। तो देखते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने वही बोला कि RIL जो है वो बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स में बहुत साल से एक्टिव है। इन्होंने क्या किया, एक रिलायंस फाउंडेशन बना रखी है, दैट इज़ अ सेक्शन 8 कंपनी जो आपको पता है। तो फाउंडेशन बना के वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स उस कंपनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर उसके थ्रू सारा उनका CSR इनिशिएटिव चल रहा है। अब आपने ऑलरेडी जनरल पब्लिक न्यूज़ में इतनी जगह देखा होगा, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पे भी क्लियर की। आप डायरेक्टली सेकंड पैराग्राफ में देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे फैक्टर्स कि भाई हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, लोगों की लाइवलीहुड के लिए कुछ मीन्स डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ों पे जनरली वो काम कर रहे हैं। अब इनके कुछ 3 कोर कमिटमेंट्स हैं जिन पे रिलायंस का CSR एक्टिविटी का इनिशिएटिव चल रहा है। स्केल, इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। अब ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए, अगर आपको कहीं कोट करने हो तो स्केल, इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। और स्केल का मतलब क्या है कि हम लार्ज लेवल पे काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसका उनकी लाइफ पे पर्सनली इम्पैक्ट होना चाहिए, उनको कुछ बेटर मिलना चाहिए। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक चल सके और उसका बेनिफिट लोगों तक रिपीटेडली पहुंच सके, ऐसा नहीं कि वन टाइम एक्टिविटी है। तो इन 3 पैरामीटर्स पे या कोर कमिटमेंट्स पे कंपनी अपना CSR इनिशिएटिव चला रही है। इसी चीज़ को नेक्स्ट पॉइंट में समझाया भी है। इट सीक्स टू स्ट्रेटेजिकली कंसोलिडेट द कंपनी CSR इनिशिएटिव्स टू फोकस ऑन डिस्क्रीट सोशल प्रॉब्लम्स एम्ड एट एनेबलिंग लाइव्स, लिविंग एंड लाइवलीहुड्स। ओइंग टू इट्स लॉन्ग ट्रेडिशन, द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल सोशल इम्पैक्ट एट द स्केल इज इंस्टिल्ड अक्रॉस द कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है, वर्ड कहीं सुना? कॉन्ग्लोमेरेट नहीं सुना? कॉर्पोरेट से रिलेटेड टर्म है इसीलिए कॉन्ग्लोमेरेट्स। और जो 2 अलग-अलग कंपनी होती हैं वो साथ में मर्ज हो जाए? नहीं, वो एग्जैक्टली वो कॉन्ग्लोमेरेट नहीं हुआ, कुछ और मीनिंग है। और कुछ ट्राई करना है तो करो। कॉन्ग्लोमेरेट ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, उनको जनरली कॉन्ग्लोमेरेट्स बोला जाता है। और वो बिज़नेस आपस में कनेक्टेड नहीं है, बेसिक बात वैसी हो, डाइवर्सिफाइड बिजनेस। ठीक है, वो जियो है और पेट्रोल बिजनेस है, उसका कोई लिंक नहीं है, बट एक बड़ी कंपनी इस तरीके के वेंचर्स में इन्वॉल्व है तो उनको कॉन्ग्लोमेरेट बोला जाता है। तो ऑब्वियसली बड़ा ग्रुप है, एक सिंगल कंपनी नहीं है, बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं, बट डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जो आपस में लिंक्ड नहीं है। तो वो जो आपने बोला मर्ज कर देना, दैट इज़ कंसोलिडेशन या मर्जर अमालगमेशन बोल सकते हैं, तो वो वैसा टर्म हो गया। बट कॉन्ग्लोमेरेट वाले में ये है कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस जो आपस में डिसकनेक्टेड वैसा। अब इन्होंने कुछ फोकस एरियाज आइडेंटिफाई किए, ये एक्चुअली इंडिविजुअल पॉइंट्स है, वो फॉर्मेटिंग मैंने वैसी रखी है, एक लाइन में लिखा है, बट वो पॉइंट्स अलग अलग है। जैसे एक कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट है।
कम्युनिटी हेल्थ केयर सेकेंड पॉइंट है, एजुकेशन एंड स्किल एनहांसमेंट जो है वो थर्ड पॉइंट है। अब ये कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, स्टेडियम्स हो सकते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स एकेडमी हो सकती है, इस टाइप की जगह भी रिलायंस डेवलप करता है कि भाई चलो स्पोर्ट्स जो है वो भी CSR एक्टिविटी में आता है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिए तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। अच्छा, ये जो आपने क्रिकेट स्टेडियम में देखते हैं अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अदानी एंड, रिलायंस एंड, बोले सब दोस्तों ने मिलकर बना दिया, वैसे मजाक चलते रहते हैं, बट एक्चुअली में वैसा है नहीं। वो दोनों कंपनीज़ ने वो स्टेडियम के डेवलपमेंट पे पैसा खर्च किया, तो बिकॉज उन्होंने पैसा खर्च किया है तो उनको भी तो ऑनर करना पड़ेगा ना। तो वो एंड जो होते हैं पिच के, कि भाई दो साइड के नाम देने होते हैं, तो एक को रिलायंस एंड नाम दिया क्योंकि उनका पैसा लगा है, अंबानी या अदानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है तो उंका नाम दे रखा है, और मोदी जी तो मोदी जी, उनका नाम तो देना ही था, तो ऑब्वियसली तो वो चीज़ वैसे लिंक हो गई। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर में आप देख ही रहे हो, उनका हॉस्पिटल है मुंबई में इतना बड़ा, तो वो हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने एक अलग विंग रखा हुआ है कि जैसे बच्चों को जो कैंसर पेशेंट्स हैं तो उनका फ्री ट्रीटमेंट होता है, तो दैट इज़ देयर CSR विंग। भाई ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल है तो पैसा भी अच्छा चार्ज करते हैं, बट एक डिपार्टमेंट वो भी है जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट भी हो रहा है, तो उस तरीके से CSR एक्टिविटी में कवर कर रहे हैं। एजुकेशन वाले में आप देख ही रहे हो, एजुकेशन फॉर ऑल करके जो IPL के टाइम पे प्रमोट करते हैं, ये सब इनके कोर फोकस एरियाज है। अब फिर बोला कि रिलायंस ने अपने डायरेक्टर्स में से एक कमेटी बना रखी है, जैसे CSR कमेटी की अपन बात करते हैं, तो वो कमेटी ये सारा मैटर देखती है। उसके बारे में बेसिक बातें बता दी। ये लोग रेगुलरली साल में मिलते रहते हैं, ट्वाइस अ ईयर बोले रिव्यू मीटिंग्स होती है और डिस्कशन होता है कि CSR कैसा चल रहा है कैसा नहीं। अब सोचो इनकी कंपनी का प्रॉफिट और उसका 2%, वो 2% कितनी कंपनियों के टर्नओवर के बराबर होगा तो इतना बड़ा पैसा खर्च करने के लिए भी तो कितना ध्यान रखना पड़ेगा। भले समाज सेवा है बट वेस्ट भी तो नहीं कर सकते, जितना हो सके उसका भी तो मैक्सिमम आउटपुट लेना है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्वार्टरली प्रॉफिट आता है इनका 18 हज़ार करोड़ एक क्वार्टर का प्रॉफिट, तो पूरे साल का प्रॉफिट 60-70,000 करोड़, उसका 2%, वो भी कुछ 100 करोड़ में होगा। तो उतना सारा पैसा खर्च करने के लिए नंबर ही ध्यान में नहीं आते, इतने बड़े अमाउंट है वो एक्चुअली में है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंपनी है दैट इज़ टाटा स्टील। टाटा वालों की तो पूरी स्टोरी अलग है। टाटा स्टील के बारे में जो बात की है ये तो मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी और सब जगह देखा है। तो ये जो जमशेदपुर जो सिटी सेटअप किया है JRD टाटा के नाम पे जो रखा गया है, तो वो वहाँ पे स्टील फाउंड्री सेटअप करने के लिए वो आइडियल प्लेस थी, लेकिन आजू बाजू दूर दूर तक कोई सिविलाइजेशन नहीं था। वो ऐसी टेरिटरी थी जो पूरा एबेंडोन्ड एरिया ही समझ लो आप, कि वहाँ पे स्टील के लिए रिसोर्सेज बहुत सही थे, कि वो आइडियल लोकेशन थी कि स्टील प्लांट सेटअप किया जाए। लेकिन उसके आसपास दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहाँ कोई बोलते हैं अपनी फैमिली के साथ रह सके। तो उनको जब वो सेटअप करना था तो उन्होंने सिर्फ वो फैक्ट्री या टाटा स्टील का प्लांट सेटअप नहीं किया, उन्होंने पूरी टाउनशिप सेटअप की। एंड वो टाउनशिप के अंदर उन्होंने तब उस टाइम पे हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा कि यार अगर मैं यहाँ फैक्ट्री लगाता हूँ तो वर्कर्स आएंगे कहाँ से, कितनी दूर से रोज़ ट्रैवल करेंगे, तो मुझे उनके रहने की जगह का तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब सिर्फ रहने की जगह के लिए मैंने क्वार्टर्स बना दिए वो इनफ नहीं है, अब उनकी फैमिली के साथ रहेंगे तो भाई खाने पीने की ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बच्चों की स्कूल, डिस्पेंसरी, ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, तो वो भी तो चाहिए। अच्छा, इतना भी नहीं कि चलो हमने उनको बेसिक नेसेसिटी दे दी, अब फैमिली के साथ कोई रह रहा है तो यार वीकेंड होगा, सैटरडे संडे होगा, बच्चे होंगे, पार्क में जाएंगे खेलने, वॉक करने की जगह चाहिए, ये सब भी तो होगा। तो बोला पब्लिक पार्क और ये सब का भी उन्होंने सोचा कि बोले मुझे सब कुछ डेवलप करके देना पड़ेगा कि उनको ये नहीं लगे कि हम मजबूरी में सैक्रिफाइस करके यहाँ रह रहे हैं स्टील प्लांट में, हमें एक फैमिली लाइफ भी मिलनी चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ में बेसिक चीज़ें, उनका माइंड जो है वो स्टेबल रहे, वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखा। तो उन्होंने उस लेवल पे तब उसको सेटअप किया। और टाटा स्टील का प्लांट सिर्फ प्लांट नहीं था, पूरा सिटी का डेवलपमेंट किया। और जब वो सिटी का डेवलपमेंट किया, आप सोच लो ये कोई खाने का काम तो है नहीं कि आपने एक प्लांट बनाया साथ में पूरा सिटी बना दिया, खर्चा कितना हुआ वो। तो टाटा स्टील इनिशियल ईयर्स में कॉन्स्टेंटली लॉस में था, प्रॉफिट कभी पेपर पे आया नहीं क्योंकि ये सारी चीज़ों में कैपेक्स हो गया था। बट जब ये चीज़ें रिजल्ट देने लगी तब जो टाटा ने प्रॉफिट दिखाया टाटा स्टील में, तब वो लेटर ईयर्स में रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ कंपनी ने क्या किया, और आज वो पूरा सिटी डेवलप हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट्री। तो इस टाइप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर कोई कंपनी रखने का विजन रखती है तो फिर ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि उनका CSR इनिशिएटिव किस लेवल पे जा रहा होगा वैसे। तो ये सब बातें यहाँ पे बताइए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर भी जनरल टाटा स्टील जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टोरी इससे आपको रिलेट हो ही जाएगी। और टाटा ने ये काम तो किया ही है, उसके साथ साथ उन्होंने और बहुत सारे नॉर्म्स तब अपनी कंपनी में ऐसे अप्लाई किए जो आज गवर्नमेंट भी फॉलो कर रही है। ये प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस है, बोनस है, ग्रेच्युटी है, ये सब रूल्स टाटा ने प्राइवेटली अपनी कंपनी में 50 साल पहले लगा दिए थे। सरकार ने एक्ट बाद में बनाया क्योंकि तब ब्रिटिशर्स का टाइम था,
इंडिपेंडेंस के बाद जब लेबर लॉज हमारे हाथ में आए तो गवर्नमेंट ने इनसे इंस्पिरेशन लिया कि यार एक कंपनी अगर ये करती है और लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिख रहा है कि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड है और सही से काम कर पा रहे तो हम भी फिर इसको रूल बना देते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, गवर्नमेंट कुछ करती है, हम इंस्पिरेशन लेते हैं एज एन इंडिविजुअल एंटिटी, या रिवर्स केस है एक प्राइवेट कंपनी के रूल्स को गवर्नमेंट ने लॉज की तरह इंप्लीमेंट किया। तो वो सब पॉइंट्स बोले। अब टेक्निकली आपको इसमें अगर ध्यान रखना है तो एक 5th पॉइंट है जहाँ JRD टाटा के बारे में डिटेल्स दे रखी है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट किया है, कैसे सोचा। तो वो एक पॉइंट आप टिक करके रख सकते हो। फिर उसके बाद एक पॉइंट छोड़ के जो बोला, इट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश लेबर वेलफेयर प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो एक टिक मार्क कर लो आप। उसके बाद वाला पॉइंट भी 8 आवर वर्क डे 1912 से। देखो ये सब उन्होंने कब इम्प्लीमेंट किया था, वो दिया है कि भाई एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट मोर देन इनफ होती है। तो वो कल्चर वो तब लेके आए थे, आज भी वो कल्चर कंपनियां फॉलो नहीं कर रही। 8 आवर की शिफ्ट तो सिर्फ बोलने के लिए होती है, ठीक है। तो वो आप अगर जब काम करोगे तो पता चलेगा कि 8 आवर्स तो सिर्फ बोलने के लिए होता है, काम तो ज़्यादा ही करना है। और अगर कोई मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो ट्रैवलिंग में आपका टाइम अलग जाएगा, और लास्ट मोमेंट पे जो मीटिंग आ जाती है ना, निकलने के आधे घंटे पहले, फिर वो मीटिंग 2 घंटे चलती है। तो आपको वो 8 आवर वर्क तो सिर्फ बोलने के लिए। फ्री मेडिकल एड, वेलफेयर डिपार्टमेंट, लीव विथ पे, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड, कॉम्पनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब तब से उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ था। और इन सब के एक्ट अपन ने पढ़े हैं, ये सब 60s 70s में आए थे, तो वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो वैसा उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया, तो ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और भी कुछ है तो देख लेते हैं इसमें। मैं एकदम जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वही बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट टू पॉइंट रीड करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो लास्ट पॉइंट में डेटा बताया हुआ है, टाटा स्टील की जो CSR एक्टिविटीज़ है वो किस लेवल पे है। आयरन और माइंस और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, जमशेदपुर सिटी में, उसके आसपास के एरिया में 800 विलेजेस, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वहाँ तक इसका इम्पैक्ट है कि लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और अभी एक वो भी लिस्ट आई थी वर्ल्ड के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट और चैरिटी की इन्होंने की है, तो उसमें टाटा का ही नाम था। तो जमशेद जी टाटा जो इसके फाउंडर थे, तो वो इंडिविजुअल पर्सनस की लिस्ट में ही इज़ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड। 102 बिलियन डॉलर्स अभी तक उन्होंने डोनेट किए, क्योंकि जो टाटा ट्रस्ट चल रहा है उसमें जो उनकी हिस्सेदारी थी उसमें से जो उन्होंने आज तक इतने, कि टाटा का 66% प्रॉफिट तो चैरिटी में जाता है, तो वो उनके नाम से जाता है, जमशेद जी टाटा के नाम से। तो भले आज वो नहीं है लेकिन डोनेशन उनके नाम से होते हैं। तो बोले वर्ल्ड में अभी तक किसी ने सबसे ज़्यादा वेल्थ अगर डोनेट की इंडिविजुअली तो वो टाटा के फाउंडर है। तो 102 बिलियन डॉलर मतलब कितना बड़ा अमाउंट हो गया, आप सोच लो। बाकी भी बहुत सारे आज के जो रिचेस्ट पीपल है उन्होंने बार बार अपनी वेल्थ डोनेट की है, बट वो टोटल नंबर अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा वैसा है। तो वो सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ये पॉइंट है। बाकी आगे भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो अलग अलग पॉलिसीज़, सोसाइटीज़, फाउंडेशंस जो उन्होंने बनाई है फॉर दिस पर्पस, उसकी लिस्ट है। तो वो आप रीड कर सकते हो अपने नॉलेज के लिए, वैसे बोला हुआ है। तो मेजरली ये सब बातें हो रही है रिलेटेड टू टाटा स्टील, और ये उसकी स्टोरी है। तो इतना इनफ है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। एक केस दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, वो पहले आपको पढ़ के आना, आप एक्सप्लेन कर देना क्या है उसके अंदर। ये CSR से रिलेटेड है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये केस आप टिक करके रख लो, सबको ही पढ़ के आना है, फिर आप में से कोई एक एक्सप्लेन कर देना तो चलेगा, क्योंकि एक ही केस है तो मैं फिर अलॉट नहीं कर रहा हूँ। पेज 18 पे आगे जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये एक्चुअली सब्जेक्ट का पार्ट है ही नहीं, आप लोगों का वैसे भी अलग से है ही ना टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, तो उसी में से आपको मिलने वाला है। पेज 19 पे आप देखोगे तो बेसिक थियरी है पूरी, उसके बाद भी नेक्स्ट पेज पे यही है, और आपका रोल क्या होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये दिया हुआ है। तो आई थिंक एक बार आप इसको आज रीडिंग में ले सकते हो, क्विक रीडिंग कर लो, अपने वो सब्जेक्ट से रिलेट कर लो। रीज़न इन्होंने खुद यहाँ पे कोट किया है, पेज 20 पे देखना, ये मॉड्यूल में से ही मैंने लिया। पेज 20 पे ना उन्होंने वो स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो डिटेल्स हैं वो आपके ESG वाले सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगी। तो वहीं से एक समरी ले रखी है, तो ऐसा सच यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आप रीड आउट कर लो आज पूरा, कुछ इसमें से नहीं समझ आया तो अपने डिस्कस कर लेंगे, वो इशू नहीं है। बट मैं अभी फिर आपको डिस्कस करा के वापस बोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके साथ फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। अब आपका रीडिंग वाला पार्ट से बाकी रहेगा, तो आज ही टारगेट करके एक बार रीड आउट कर लेना, क्विक रीडिंग कर लो, जो क्वेरीज है लेके आ जाओ, ताकि फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़े तो ये पेंडिंग नहीं रहे वैसा, ठीक है। बस आज के लिए इतना रखो, इनफ।